Hello students, I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies, Kanpur. Welcome all in my video class. Students, it is an effort to teach you in an effective way through this media and teaching aids like PPT, handwritten notes, any type of PDF and so on. So let's start. Today I am going to teach you your third paper, Psychological Perspective of Education of B.Ed first year, in which I will discuss about the most important topic or question, the laws of learning of your second unit, learning and motivation. Students, it is very important question and each and every year it comes in the exams in long or short question. Okay, now I will show you a PPT on the screen. Through this, I will discuss the topic. Okay, let's start. At first, we know what is learning. Learning is that process in which our behavior modifies according to the circumstances or our surroundings. The act of behaving according to circumstances is influenced by its environment is called learning. A human being every time starting to end कुछ न कुछ सीखता रहता है. A very common example you will have already listened that if एक बच्चा burning candle को छूने से अगर एक बार जल जाता है then next time वह किसी भी जलती हुई चीज से दूर रहता है. Means that the child learns through this experience. So next time he will not do this again. So we can say it is the process in which a person modifies his behavior according to the new situation. Now we see some definitions of learning. According to Woodworth, the process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. Means when we deal with a new situation, then we do new responses and learn or gain new knowledge also. It is called learning. जब हम कुछ नया ज्ञान हासिल करते हैं और नई प्रतिक्रियाएं भी करते हैं तो इसे ही हम सीखना कहते हैं. According to Gates and others, learning is the modification of behavior through experience and training. He said that whatever we do or behave, it is only due to our experiences and training. जो भी हमारा अनुभव होता है वह हमें नई नई चीज को सीखने में हेल्प करता है and this modifies our behavior. So we can say that it is the process by which our behavior is modified, originated or changed through experiences, exercise, practice or training. Means the role of experiences is very important or helpful. It is direct or indirect too. हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़रूरी होता है. एंड फॉर गुड और स्टेबल लर्निंग वी हैव टू डू प्रैक्टिस और एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग, जिससे हमारी लर्निंग क्या होती है, पावरफुल होती है, बिल्कुल स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, स्ट्रेंथेंड होती है. नाउ वी सी द लॉज ऑफ learning on which learning depends, that we are learning something or not. These laws have been given by E.L. Thorndike. Thorndike has given basically these laws on the basis of the connection between stimulus and response and said this S.R. Bond theory. At first, he gave the primary laws of learning. Further, he gave also secondary laws of learning on his research basis. So, we see at first primary laws of learning. The first law is
Law of readiness. Law of readiness. Second law is law of exercise, in which two another laws, law of use and law of disuse, and third law is law of effect. Firstly हम देखते हैं law of readiness. Individuals learn best when they are physically, mentally and emotionally ready to learn, and they do not learn well if they see no reason for learning. If a child physically, mentally, emotionally ready to learn है, means वो ready है learning के लिए, then he or she learn quickly, effectively and with greater satisfaction. So not to force them to learn, उसे रेडी करना है, उसे मोटिवेट करना है लर्निंग के लिए, ना कि उसे फोर्स करना है. बिकॉज इफ ही इज रेडी ही विल टेक इंटरेस्ट टू लर्न एंड लर्निंग विल बी स्टेबल. अगर वह रेडी है सीखने के लिए, देन डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग. उसे हमें उस सिचुएशन में किसी न किसी तरह से लर्निंग के लिए सिचुएशन प्रोवाइड करनी है ताकि वह सीख सके. मीन्स अगर उस समय उसे अवसर नहीं दिया जाएगा, देन ही विल बी डिससेटिस्फाई, वह डिससेटिस्फाई हो जाएगा. इस लॉ को हम लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी कहते हैं. द अनदर लॉ इज, सेकेंड लॉ ऑफ लर्निंग इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. लॉ ऑफ रेडीनेस की एक चीज मैं आपको एक पार्ट बताना भूल गई. इम्प्लीकेशंस क्या हैं? We see the implication class of law of readiness. If a teacher motivates a student, motivate करता है and tells the utility of the task, उस task की utility बताता है जो हम सिखाना चाहते हैं, then he or she will take interest and वह मन से सीखेगा and results will also be satisfactory. The second law is law of exercise. अभ्यास से लर्निंग स्टेबल होती है. थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड. हमें अच्छी तरह से वो याद रहती हैं. इफ वी डू एनी टास्क अगेन एंड अगेन, ऑन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, देन SR बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल. स्टूडेंट्स डू नॉट लीन कॉम्प्लेक्स टास्क इन अ सिंगल सेशन. कोई भी एक डिफिकल्ट टास्क है, देन स्टूडेंट्स वह एक सिंगल सेशन में नहीं सीख सकते. इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं दैट कि मूवीज बनती हैं तो बहुत सारे रीटेक्स लेकर एंड में शॉर्ट को ओके किया जाता है. एज मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं, डांस है, साइकिलिंग है. मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस. मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. स्पीकिंग एंड लैंग्वेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस. स्किल्स हैं लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, टाइपिंग, साइकिलिंग, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. देयर आर 2 लॉज ऑफ लर्निंग इन दिस लॉ. इस लॉ में फिर से अगेन 2 लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज. लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम. विच वर्क we are going to do if it is useful for me, हमारे लिए वो यूजफुल है. एंड इफ वी प्रैक्टिस रेगुलरली या उसको रिपीट करते हैं, देन लर्निंग इज स्ट्रेंथन. वी नो डैट ये हमें फ्यूचर में काम आएगा, देन वी विल रेडी टू डू. एंड नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डिसयूज. लॉ ऑफ डिसयूज यानी कि अनुपयोग का नियम. इफ दैट टास्क और वर्क और एक्टिविटी इज नॉट यूजफुल फॉर मी, then we will not take interest to do and not do practice. and जब वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं होगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, then learning are weakened when trial or practice is discontinued. Now we see the implications of law of exercise. When a teacher goes in the class and teach small children, then make exercise everything orally again and again, then they will learn soon and stable. And before starting the next day class, revise that previous work for 5 to 10 minutes, because by revision हमें learning जो होती है और stable हो जाती है. Now see the last primary law, law of effect. It is an important law. Learning is strengthened when
accompanied by a pleasant or satisfying feeling. थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रभाव को देखकर ही ये सारे नियम बताए हैं, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो उन्होंने बॉन्ड देखना चाहा था उसका जो रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री था, देन उसने ये नियम बताए. टू सी एनी स्टिमुलस व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड मीन्स टू डू एन एक्टिविटी if results are satisfactory, then it is said that SR bond is good or stable. Because when results are satisfactory, then we will do the task again and again. Otherwise, we leave that activity. See once again this law. If an individual feels pleasant to do any activity, then he does the work for a long time. लर्निंग गेट्स स्ट्रेंथन, उसे प्लीजेंट फीलिंग होगी, सेटिस्फाइंग फीलिंग होगी. बट लर्निंग इज वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विद अनप्लीजेंट फीलिंग. ही फील्स व्हेन अनप्लीजेंट गेट्स फेलियर और डिससेटिस्फाइड, देन हिज बॉन्ड विल बी ब्लॉक्ड, लर्निंग विल बी वीकेंड एंड ही विल लीव द वर्क. वह उस काम को छोड़ देगा. लर्निंग टेक्स प्लेस properly when it results in satisfaction and the learner derives pleasure out of it. Now see the implication. At first, a teacher should encourage the students. Without motivation or encouragement, he will never take interest and results will not be pleasant. Second thing, the task or activity should be the mental level of the child, neither too tough nor too easy. नहीं बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होना चाहिए, उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. टीचिंग मेथड शुड बी सेटिस्फैक्ट्री. टीचिंग मेथड ऐसा हो कि उनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में. ओके, दीज आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग. सेकेंडरी लॉज कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग. सो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ एटीट्यूड. परफॉर्मेंस इज बेटर if the attitude is positive or healthy towards the task. After that he learns correctly and completely and satisfactorily, effectively. If हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा, then our learning will not be stable or positive. The next one is law of multiple responses. An individual responds for a new situation in variety of ways. बहुत सारे जब हमें तरीके मालूम होते हैं एक सिचुएशन को हैंडल करने के, बट एट लास्ट क्या होता है? बाय ट्रायल एंड एरर मेथड इंडिविजुअल रीचेस ऑन करेक्ट रिस्पॉन्स. वह करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है बहुत से ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके. मीन्स वह रिस्पॉन्स जो सही है उस पर वह पहुंच जाता है. द थर्ड वन इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी. As to this law, the learner has the capacity to select the important from the irrelevant element in order to determine appropriate responses. Thorndike said that जब हम एक्टिविटी को पार्ट्स में देखते हैं और उसमें से irrelevant मटेरियल को हटा देते हैं और रेलिवेंट को, ज़रूरी को सिलेक्ट करते हैं, तो हम उसके बाद उस होल को ग्रहण कर पाते हैं. देन उस रेलिवेंट मैटर को लेकर हम रिस्पॉन्स करते हैं और हमारी लर्निंग गुड एंड स्टेबल होती है. द फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ एनालॉगी, मीन्स सिमिलैरिटी, सादृश्यता का नियम. रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज मेड बाय हिम इन द पास्ट. उसके द्वारा जो पास्ट में कभी कोई किया गया रिस्पॉन्स है वो उस न्यू सिचुएशन से कहीं ना कहीं मेल खा रहा है. मीन्स इफ सिमिलर सिचुएशन से रिलेटेड है उसकी ये न्यू सिचुएशन, देन लर्निंग विल बी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल. एज आफ्टर साइकिलिंग इफ वी राइड अ बाइक, देन इट इज हेल्पफुल. द लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. Any response which is possible can be linked
with any situation to which he is sensitive. Thorndike said that किसी भी रिस्पॉन्स को हम किसी एक ऐसी सिचुएशन से लिंक कर सकते हैं जिसके प्रति वो सेंसिटिव हो. मीन्स वी कैन से कि हमारा किसी चीज़ से जुड़ाव हो, लगाव हो, अफेक्शन हो, हमें वो चीज़ पसंद हो, तो उससे हम एक उस अफेक्शन से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्ड कर सकते हैं. एज थॉर्नडाइक सॉ डैट ही वांट्स टू ट्रेन द कैट इन हिज एक्सपेरिमेंट कि वह स्टैंड अप कहते ही खड़ी हो जाए. उसने इस अपने एक्सपेरिमेंट में यह भी करके देखा. देन उसने क्या किया, फिश दिखाकर उसे स्टैंड अप करना सिखाया. एंड वन टाइम ऐसा आया कि वह बिना फिश दिखाए भी स्टैंड अप करना सीख गई. मोस्टली वी सी इन द सर्कस जो ट्रेंड किए जाते हैं एनिमल्स, बिकॉज द कैट वॉज सेंसिटिव अबाउट फिश. सेंसिटिव मीन्स जिससे हमारा लगाव, उसका उससे लगाव था, उसको फिश पसंद है खाना. ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको ये क्लास, वीडियो क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू once again. Have a nice day. Goodbye.